Hello friends, welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your exams. In next 10 days, CS exams is going to be started, and first of all, I know that it's a very crucial time. Students are stressed, of course, feeling anxious और तैयारी भी अच्छे से हो रही है. So in these last 10 days, what you should do so that you can clear the upcoming attempts, उसके बारे में हम आज बात करेंगे. मैं आपका ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लूंगी, फटाफट से बता दूंगी बिकॉज दीज लास्ट 10 days आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है इन दीज लास्ट 10 days so that you can clear your attempt very smoothly. So let's start with the video. I hope that you're subscribed to the channel, and the upcoming week I am coming up with revision lectures, and also I will be uploading the lectures, the quick lectures, as in one day before JIGL and one day before company law. So please subscribe to my channel if you have not done it yet. So 10 days to go. Are you ready? Need not ask that. I know that you all are ready, right? And always remember, it's all here, right? You have prepared and you can do it. Starting with the first thing, like this thing you should do on priority. सबसे पहले ना आज यही काम करो. Make a list of what you're going to study one day before exams. तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. Many students don't realize this. अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, but one day before the main problem is they can't revise everything. Of course, time limitation है, time constraint है, सारा तो पढ़ भी नहीं सकते. But how you can actually cover your maximum syllabus is make a list. एक list बना लो, paper लो, list बना लो and write it down. Write down all the concepts, all the, I would say question numbers. See, because all of us know that this question is different. जैसे हम देखते हैं कि ये वाला जो टॉपिक का क्वेश्चन है ना, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं. अगर मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करूं तो उसमें ना कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें दो तीन कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं. वैसे क्वेश्चन नंबर्स के नंबर लिख लो. नोट्स फ्रॉम विच यू आर गोइंग टू स्टडी, वो सारी चीजें आपके पास एक लिस्ट के फॉर्म में होनी चाहिए. बिकॉज ट्रस्ट मी, दिस जस्ट बाय डूइंग दिस आप इतना अपना काम कम कर लोगे. बिकॉज वेन यू सी ओनली वन डे इज लेफ्ट, वन डे कंसिडर करो, राइट, 1.5 भी नहीं, और जो बोथ ग्रुप देते हैं उनके लिए तो और टाइम कम हो जाता है. सो वेन यू आर एक्चुअली प्रिपेयर्ड, वेन यू आर एक्चुअली ready with the list that I have to do only these things, trust me, you're 50% there, right? आप अपना कितना टाइम बचा लेते हो, you don't even realize it, right? So first thing, in the last or the upcoming 10 days, आज ही करो. मैं तो कहती हूँ that आपके जितने भी subjects हैं उन सबकी एक एक list बना लो जिसमें concepts, theory, पेज नंबर्स, क्वेश्चन नंबर्स, जो आपने लास्ट डे रेफर करना है वो आपके पास रेडिली अवेलेबल होना चाहिए. मूविंग टू द पॉइंट नंबर 2, prioritize the topics which must be done without fail. अभी भी चेक करो कि क्या आपने वो सारे टॉपिक्स समझ लिए, कर लिए, जो कि आपको आने चाहिए. See, there are certain topics which should be done, which should be understood without fail, right? उन्हें छोड़ के जाने का कोई स्कोप होना ही नहीं चाहिए. वैसे तो आई वुड से कि कोई भी टॉपिक मत छोड़ के जाओ, बट स्टिल कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको लग रहा है दैट आई हैव लेफ्ट इट, एंड हर बार क्वेश्चन आता है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस बार भी आएगा, but still you should be prepared, right, for that. Now during the last days, what you can do is you can definitely listen to some revision lecture, or you can listen to some marathon. These things really help towards the end. जब टाइम कम होता है तो जब कोई बोल के बताता है तो अच्छे से समझ आ जाता है. So prioritize the topics. वो सारे टॉपिक्स टिक करो, मार्क करो कि क्या हमने वो सारे टॉपिक्स कर लिए हैं जो हमें पता होने चाहिए. Now why do I say this? देखो क्या होता है कि कुछ टॉपिक्स को ना हमें मल्टीपल टाइम्स रिविजन देनी पड़ती है बिकॉज दे आर ट्रिकी, दे आर कॉम्प्लिकेटेड, और कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमें समझ आ जाते हैं इजीली. सो दिस इज द बैलेंस यू नीड टू क्रिएट इन योर रिविजन ऑल्सो. वो टॉपिक्स जो बार बार करने पड़ते हैं समझने के लिए उन्हें प्रायोरिटी पे रखो, और वो टॉपिक्स जो आपको नॉर्मली समझ आ जाते हैं बिकॉज वो इंटर रिलेटेड है उन्हें थोड़ा सा बैक एंड पे रखो कि अगर एट द एंड मुझे फटाफट रिवाइज करना पड़ा तो मैं ऐसे देख के चला जाऊंगा. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. वो सारे टॉपिक्स भी आप टिक कर लो एंड चेक कर लो कि आपने वो सारे टॉपिक्स किए हैं या नहीं किए. The third tip would be, now because as we are moving towards the exams, बहुत सारी predictions होने लग जाती है, ऐसा पेपर आएगा, ऐसा पेपर आएगा, या फिर
it would be like कि ये चीज कर लो, ये चीज कर लो, ये टॉपिक्स कर लो. So at this point of time during the last 10 days focus only and only on your preparation. आपके दिमाग में और कोई चीज नहीं आनी चाहिए, और कोई चीज के बारे में नहीं सोचना रिजल्ट कैसा आएगा, पिछली बार कैसा आया था, पेपर इजी आएंगे, टफ आएंगे, चेकिंग कैसे हुई थी, ये वो, मतलब there are certain things. See, I always say this, you should always think and work on the things you can control. जो चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर है उनके बारे में सोच के अपने लास्ट 10 डेज का प्रेशियस टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फोकस ओनली एंड ओनली ऑन योर प्रेपरेशन. दैट इज इट. योर होल फोकस, 100% फोकस शुड ओनली बी ऑन योर प्रेपरेशन, राइट? प्रोडिक्शंस क्या हो रही है, पेपर कैसे आएंगे, यू नो इंपॉर्टेंट आएंगे, लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आएंगे, ये सब चीजें छोड़ दो. बस अपनी प्रेपरेशन पे फोकस करो. बिकॉज समटाइम्स जो हम ये लास्ट 10 डेज में पढ़ते हैं वो चीजें हम जल्दी भूलते नहीं है, राइट? बिकॉज एग्जाम्स आने वाले. सो अगर उन्हीं में से कुछ आ जाए पेपर में तो हमेशा रेडिली याद रहता है. तो अभी इस तरफ फुल फोकस अपने प्रेपरेशन पे रखो और कहीं भी नहीं. फोर्थ टॉपिक वुड बी रिवाइज thoroughly वट एवर यू हैव डन. आपने जो भी प्रिपेयर कर लिया है इन लास्ट 10 डेज में उसे अच्छे से रिवाइज करो. यू कैन कीप अ 2 day स्ट्रैटेजी, यू कैन कीप अ 3 day स्ट्रैटेजी. वो करके आपके जितने भी पेपर हैं उसके हिसाब से ले करके उसे रिवाइज करो. 2-2 3-3 दिन का टारगेट रखो और क्विक रिविजन करो. ये जो लास्ट के 10 डेज हैं इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रादर देन गोइंग एंड डूइंग समथिंग न्यू, रादर देन यू नो आई वुड से प्रिपेयरिंग समथिंग न्यू. और ये भी आप आजकल मैराथन से कर सकते हो, रिविजन लेक्चर से कर सकते हो. आई मीन दीज थिंग्स वर नॉट देयर व्हेन वी यूज्ड टू प्रिपेयर, बट नाउ आई सी दे आर सो हेल्पफुल. आप रिविजन लेक्चर्स देख लो, क्विकली रिवाइज हो जाता है, राइट? क्या कैसे आप कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल आपने रिविजन लेक्चर सुना टैक्स का, फॉर एग्जाम्पल आपने सुना और फिर उस टॉपिक के क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लिए. दैट इज एक्चुअली द करेक्ट वे. उस तरीके से आप 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में अपना मैक्सिमम सिलेबस रिवाइज भी कर सकते हो और आपका जो है काफी हद तक रिवीजन हो भी जाएगा. सो इन दीज लास्ट 10 डेज फोकस ऑन रिवाइजिंग एवरीथिंग. टेक 2 days, 3 days एंड इफ यू कैन रिवाइज इट बाय योरसेल्फ, नथिंग लाइक दैट. कई बार आपके नोट्स बहुत अच्छे होते हैं, बट इफ नॉट देन गो फॉर मैराथन्स, गो फॉर रिविजन लेक्चर्स, लिसन टू देम and try questions on your own. That is also enough for a good revision, right? And the last step, which you might feel is not that important but I feel it's important, is arrange the stationery and pack your bag. Let's say not leave all these things on the last day कि हमें लास्ट डे पता चल रहा है अरे मेरे पास पेन नहीं है या पेंसिल नहीं है या कार्डबोर्ड नहीं है, कैलकुलेटर मेरा नहीं चल रहा है. तो वो सारी चीज़ें बिफोर हैंड अरेंज होनी चाहिए आपके पास. आपके पेन, आपकी पेंसिल, आपकी स्केल, आपकी कैलकुलेटर, एवरीथिंग शुड बी रेडिली अवेलेबल, राइट? मैंने देखा कई बच्चे एक्स्ट्रा कैलकुलेटर्स भी कैरी करते हैं. जो भी आपको चीज़ें चाहिए, इनफैक्ट आई वुड से पैक योर बैग एंड कीप इट ऑन अ साइड, राइट? वो आपको एक वाइब भी देगा कि एग्जाम्स आने वाले हैं, राइट? तो these things are few things that you should do in the last 10 days. And till now while I'm shooting the video I had not seen the admit card notification. Probably बहुत जल्दी वो भी आ जाएंगे, तो उसका भी प्रिंट लेके आप रख लेना. So these are the 5 basic things जो आपको करनी चाहिए during the last 10 days. And I would say that now you have done, you have prepared. आपने जितनी मेहनत करनी थी आपने कर ली, आपने रिविजन कर ली. अब लास्ट के 10 डेज ना कई बार बच्चे बहुत एंग्शियस हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, या ये सोचने लग जाते हैं पेपर कैसा आएगा, लास्ट टाइम कैसा हुआ था. तो ये सारी चीज़ें कुछ नहीं सोचनी, सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, जून के अटेम्प्ट के बारे में सोचना है, ये सोचना है कि किस तरीके से हमने अटेम्प्ट करना है, कैसे एग्जाम्स आएंगे. बस ये सारी चीज़ें देखो, सोचो, एंड I believe you can do it, right? All the best from my side. I'm coming up with revision lectures and videos will be there for quick revision one day before also. So I will try to make the revision lectures for maximum of it ताकि आप जो है कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सुन के रिवाइज कर लो. I hope you like the video. अच्छी लगी तो like कर देना. Do share it with your friends and subscribe to my channel if you have not done it yet. I'll see you super soon in my next video. Till then, stay happy, stay blessed and keep the preparations on. Bye bye.